Hello friends, welcome to EduScoop. We are continuing with our MPG के लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने एक नए पैटर्न पर MPG के पढ़ना स्टार्ट किया था। हम लोग जो है वो MPG के को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे थे। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है लेक्चर सीरीज का, एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस लेक्चर सीरीज, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑफ वीडियोज़ and for notes you can follow us on Instagram. You can also join our Telegram channel or you can follow us on Facebook. सबका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस गिवन ईमेल एड्रेस और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। और आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो चंबल डिवीजन से किया था, जिसमें हम लोग चंबल डिवीजन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, दिस पार्ट। उसके बाद ग्वालियर डिवीजन में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसमें से 3 हमने कवर कर लिए हैं, ग्वालियर, दतिया एंड शिवपुरी। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हमको करनी है वो है आपका गुना डिस्ट्रिक्ट। It is situated here. ज्योग्राफी की बात करते हैं तो it consists of 6390 square kilometer and it ranks 21 in terms of area. It was formed in 1956 when initially MP was formed and 43 districts were formed. Main rivers flowing from Guna districts are पार्वती एंड सिंध। अगर इसकी लोकेशन की और प्रिसाइज बात करें तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ शिवपुरी, विथ अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, एंड इट शेयर्स बाउंड्री विथ वन स्टेट दैट इज राजस्थान। पॉलिटी की बात करते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ Guna Lok Sabha constituency. It means itself it is a Lok Sabha constituency out of 29 constituencies of MP. Then it is further subdivided into 7 tehsils, which are Bamori, Guna, Aron, Raghavgarh, Kumbhraj, Chachaura and Maksudangarh. इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो in ancient time it was part of Avanti kingdom ruled by Chandpradyot Mahasena. Then it was merged into Magad empire and then it became an integral part of Magad. After that it was ruled by almost all the dynasties controlled northern India like Guptas, Gurjara Pratiharas, then after that Delhi Sultanate, then Mughals, and finally after Battle of Panipat in 1761, this area was controlled by Marathas and it was conquered by Sindhyas. The Sindhya ruler who conquered this area was Ramoji Rao Sindhya, and after that it became integral part of Gwalior kingdom and it remained under the control of Sindhyas till independence. After independence, it became part of Madhya Bharat. On 28th May 1948, out of 16 districts, it was one of the districts formed in 1948. And on 1st November, when reorganization was done on the recommendation of Fazal Ali Commission, MP was formed and Madhya Bharat was merged in Madhya Pradesh and then Guna became integral part of Madhya Pradesh. इकोनॉमी की बात करते हैं तो it has a perfect balance between agriculture and industrial development. Main crops which are cultivated in this area are rice,
सनफ्लावर, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड मेज। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो दो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं। फर्स्ट इज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पहले बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। इट इज सिचुएटेड इन विजयपुर, गुना, एंड इट इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट बात करते हैं गेल। गेल स्टैंड्स फॉर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिस is an important industry. It is a pipeline. It is a interstate pipeline, Hazira, Vijaypur and Jagdishpur, which starts from Uttar Pradesh, and this pipeline was basically set up to provide natural gas to the fertilizer industries. So it supports this National Fertilizers Limited. Next, tourist place की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, दैट इज बजरंगगढ़ फोर्ट। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय यदुवंशी किंग जयनारायण। नाम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, इस डिस्ट्रिक्ट में और भी विजिटिंग साइट्स हैं या और भी टूरिस्ट प्लेस हो सकती हैं, बट वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर मैं ऐसे बता दूं आपको कि कोई शिव मंदिर है या और कोई टेम्पल है, तो वो एमपी में हर जगह, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो पूरी लेक्चर सीरीज है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रख के बनाई गई हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था कि सर वीडियोस जो है वो काफ़ी छोटे हैं या इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं हो रही है, वो मैं जानबूझ के ओमिट कर रहा हूँ। जैसे अगर बात करें तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो मैं उसमें आपको लैटिट्यूड्स बता दूं या लॉन्गिट्यूड्स बता दूं, तो वो आपके काम के नहीं है, बिकॉज 52 डिस्ट्रिक्ट्स की इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आप याद वैसे भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम उसके बाद बात करें तो डेमोग्राफी की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो मैं आपको बता दूं, हर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन मैं आपको बता सकता हूं, बट उससे कुछ नहीं होगा। उससे ये होगा कि वीडियोस जो है वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे, और आपके एग्जाम के लिए वो कुछ भी इंपॉर्टेंट उसमें रहेगा नहीं। तो जितनी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है वीडियो में, ठीक है। नाउ आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज नोन एज शिमला ऑफ एमपी, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है विच इज द कूलेस्ट प्लेस ऑफ एमपी। ये पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था, इट इज शिवपुरी। इट इज ऑल्सो नोन एज शिमला ऑफ एमपी and it is the coolest place of MP. Next, Datia Palace was constructed by. This palace is also known as Veer Singh Dev Palace. So it was constructed by King Veer Singh Dev of Orchha. Third, Sonagir Jain pilgrimage site was constructed by. Sorry, this question is Jain pilgrimage site was situated in. It was a typo error. So Sonagir Jain pilgrimage site is situated in Datia district. Next, last question, Sahasrabahu temple is situated in which district? ठीक है, Sahasrabahu temple, और it is also known as सासबहू टेम्पल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था कि मतलब ओरिजिनली इट इज अ सहस्त्रबाहु टेम्पल विच इज अनदर नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, बट आम बोलचाल की वजह से वो अब सासबहू टेम्पल हो गया है, एंड दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन Gwalior district. Thank you for watching. Hope you liked the video. Hit the like button and press the bell icon for getting the updates of videos. You can follow us on Instagram and you can also follow us on Telegram. और आप हमारा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।